My dear students, today I standing in front of you a new topic, a new wonderful topic of science. Okay guys, so today I am standing at another interesting topic. I hope the last topic you learned and you enjoyed also. Today we would like to see again a topic, a basic topic, a related topic about our Mother Earth. Okay guys, so today's topic name is the Earth and its living world. The Earth, that means our Mother Earth. I repeat again and again, Earth is our second mother. Okay, the Earth and its living world. So guys, dear students, actually our Earth consists with atmospheric, biosphere and again a related spheres. That means air, landform, water bodies. These are all related towards our Earth atmosphere, and actually these consist with a spheres, biospheres. So today we want to see what is sphere, what is biosphere. The first sphere is, you can see in front of you, the lithosphere. The lithosphere, everyone know that, mind it, that is sphere, S-P-H-E-R-E, sphere, not S-P-E-A-R. S-P-A-R, that is also sphere, but that is means भाला. इंग्लिश में आप बोलते हो ना S-P-E-A-R, that sphere means भाला, and that sphere is another sphere. ये अलग है, difference है. Okay, the first one you can see the lithosphere, the earth crust and small hard portion of the layer under it is called the lithosphere. I repeat it again, you can see in front of you the earth's crust and small hard portion of the layer under it is the lithosphere. ठीक है, जो कि जमीन के अंदर लैंड फॉर्म में हो, लैंड के ऊपर हो, स्टोन हो, क्रस्ट हो, रॉक हो, these are all a portion of the lithosphere. ये lithosphere का portion है. You can see example, that is mountain, valley, hill, plain, ground, etc., etc. These are all example of the lithosphere. Okay, the sphere, that sphere have three types. Number one is lithosphere, number two we will see hydrosphere, and the last one is atmosphere, and altogether called biosphere. Okay, lithosphere, hydrosphere, and the number three is atmosphere, and altogether called biosphere. Bio means what? Living thing. Bio means you, me and everyone. Okay, so see, mountain, valley, hill, plain, etc. These are example of lithosphere. It consists, it means so, it means lithosphere. It consists roots of plants. लिथोस्फीयर में प्लांट के रूट भी आते हैं. जो अगर आपके घर के आसपास के प्लांट है, ट्रीज है, तो उसके रूट्स जमीन के अंदर जाते हैं ना, तो अगर उसके अंदर जाते हैं तो पार्ट आता है लिथोस्फीयर का. ठीक है, देन इट एक्सटेंड अंडर द वाटर. लिथोस्फीयर इज ऑल्सो एक्सटेंड अंडर द वाटर. अगर ओशन में बहुत बड़ा पानी है कि नहीं, रिवर है, तो उसके नीचे जो होता है तलबा, लैंड, द लैंड इज फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर. वो एक लिथोस्फीयर का पार्ट है. देन इट कंसिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, लैंड, सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारे टाइप्स के लैंड फॉर्म आएंगे, है कि नहीं. इसमें माउंटेन आएंगे, रॉक फॉर्म आएंगे. दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर की बहुत सारी आपको जानकारी मिलेंगी. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन रीड इन योर दिस पर्टिकुलर लेसन ऑल्सो. आई एम जस्ट गिविंग ए ब्रीफ. मैं आपको जैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप वहाँ पे अच्छे से रीड करिए, यूट्यूब पे भी सर्च करिए. ओके गाइज, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो इज स्टैंड फॉर वाटर. हैव यू हर्ड अबाउट H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड. H stand for hydrogen and O for oxygen. That means hydro means what का है? Hydrosphere, it means water. The hydrosphere is the total amount of water on planet. The hydrosphere includes water that is on the surface of the planet, underground and in the air. Okay, हम सबको पता है कि पानी, वाटर बहुत ज़्यादा सोर्सेस में अवेलेबल होता है. ठीक है, नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट भी है उसका भी हम देखने वाले. बट राइट नाउ यू कैन सी हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट वाटर ऑन द प्लैनेट. जितना भी प्लैनेट पे पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. ओके, The hydrosphere includes water that is on the surface of the planet, underground and is in the air.
उसमें सब सारे तरफ के पानी आ गए. ऑल टाइप्स ऑफ वाटर इज इन द अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर है, और एयर में भी है. एयर में भी है क्लाउड. क्लाउड इज अ फॉर्म ऑल्सो वाटर. ओके गाइज, लेट्स सी टुवर्ड्स द एग्जाम्पल. ओशन, स्ट्रीम्स, लेक, whale, tube whale, bore, river, etc. etc. There are too much sources of the water. Ocean सबसे बड़ा सोर्स है कि नहीं, सागर, महासागर, तालाब. whale, near about 75% water on the earth. Out of 100 there is 75% water on the land, on the earth. अपने इस पृथ्वी पे और ऑल दी वर्ल्ड पे लगभग 75% पानी अवेलेबल है. बाकी का 25% ही लैंड फॉर्म जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ओके, देन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑल्सो. वाटर इज इन ऑल्सो आइस फॉर्म. इट मीन्स वाटर इज जस्ट नॉट इन ए लिक्विड, इट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म टू. हिमालय आपने सुना होगा, हिमालय है कि नहीं, माउंटेन बड़े बड़े, गॉडविन स्ट्रीम, K2, वहाँ पे बर्फ़ होती है कि नहीं. जैसे कि मान लो स्विट्ज़रलैंड हो, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे तो जो वाटर है वो किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, आइस क्यूब के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में. बट वो भी तो एक क्या है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है ना. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, स्फीयर ऑफ द अर्थ. थर्ड वन इज स्टैंड फॉर द एटमॉस्फेयर. द इनवॉल्व ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. Okay guys, the envelope of air which air surrounding us in atmosphere, whatever it may be, they are known as atmosphere. It means, for example, mixture of various gases, nitrogen, water, carbon dioxide, carbon monoxide, hydroxide, whatever it may be, all over the gases, air, these are all known as atmosphere. जो हमें दिखता है आकाश के ऊपर, अगर हम दिखेंगे स्काई की ओर, तो जो भी हमें एयर दिखेगी वो सारा एटमॉस्फेयर, यानी अपनी ज़मीन से लेके आसमान तक जो भी दिखाई देता है वो सारा एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है. अगर हवाई जहाज, प्लेन अगर अपने ऊपर से जाता है तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है कहीं से कहीं तक. अब एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर है, देयर इज सम लेयर इन एटमॉस्फेयर ऑल्सो. द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नंबर 1 इज ट्रोपोस्फियर, 2 इज स्ट्रेटोस्फियर, 3 इज मेसोस्फियर, एनोस्फियर, एक्सोस्फियर. यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ, आपके सामने अभी एक फोटो भी आया होगा, उस पर दिख रहा है आपको कि जो पार्ट है, ये लेयर है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. ओके गाइज, अब उसके हर एक की कुछ लिमिट है, कुछ किलोमीटर होते हैं, कुछ बार होते हैं. इन विच अ पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स ओजोन, ओजोन लेयर. हैव यू हर्ड अबाउट ओजोन? आपने ओजोन के बारे में कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप रिसर्च करिए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा. OZON, ओजोन. पता है ओजोन क्या होता है? ओजोन एक स्काई में, आसमान में एक लेयर है. लेयर बोल सकते हैं कि भगवान ने, गॉड ने अपने लिए एक ढाल बना के दी है. गणेश जी ने ऐसी ढाल बना के दी है. पता है ओजोन क्या करता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज, इट कम्स फ्रॉम द सन, जो कि सन से यूवी रेज आती है, बहुत स्ट्रिक्टली होती है, जो कि खतरनाक होती है. ओजोन उसे क्या करता है, ढाल बना के, जो अपने पास नहीं आने देता, ऊपर के ऊपर उसे कैचअप करता है. ओजोन लेयर वो भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है. बट पता है क्या हो रहा है, दिन ब दिन जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण ओजोन लेयर की जो है उसकी क्षमता, लिएबिलिटी कम होती जा रही है. अगर इसी प्रकार पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा ओजोन लेयर वैनिश हो जाएगी. फिर अलग अलग टाइप्स के, फिर क्या होगी, स्किन के डिसीज़ हो जाएंगे, अलग अलग रैशेस होना, जो भी अलग अलग टाइप्स. फिर ये इसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मी, यू एंड आवर ह्यूमन बीइंग. ओके गाइज, द नेक्स्ट वन इज in which one part is very important, that is water cycle. Now you can enjoy a water cycle full video. Right now it comes in front of you. My dear students, water cycle is also important parts of atmosphere. Okay, so how water consist or reproduce. The sun heats up the water from oceans, lakes and river, and water changes into water vapor by the process of evaporation. Evaporate means what? बाष्प होना, है कि नहीं? जैसे कि पानी का क्या होता है, वेपर में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. देन plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration.
As the water vapor rise up into the air, it starts cooling down and form tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. Altogether, cloud. This process is called condensation. बारिश बनना, बारिश गिरना. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail or snow. This process is called precipitation. जब वो जो cloud उसका weight बेटा उठा नहीं सकते तब बारिश गिरती है. Some of the water that fall on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of ground water. The remaining water falls back into the oceans, lakes, rivers and seas. This process is called collection of the water. Okay, it's very simple. The sun starts heating up this water once again. This circulation of water is called water cycle. This comes again and again. Okay guys. Now move towards the next one and last one part is biosphere. Okay guys. The biosphere means what? The lithosphere, hydrosphere and atmosphere, it all together called biosphere. Bio means what? Bio means जीव, living thing. बायोस्फीयर का मीनिंग क्या है कि इसमें सिर्फ लिविंग थिंग रहते हैं, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बींग से, वेरियस अलग अलग टाइप्स के एनिमल से. यू कैन सी लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आल्सो इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. जिस स्फीयर में सभी के सभी आ रहे हैं, एक लिथोस्फीयर आ रहा है जो कि जमीन के नीचे, सेकंड वन क्या आ रहा है? हाइड्रोस्फीयर आ रहा है जिसमें पानी के जीव आ रहे हैं, पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. थर्ड वन एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, यानी उसमें शिलावरण, जलावरण, वातावरण इज ऑल टुगेदर नोन एज जीवावरण. सबसे बड़ा ये टॉपिक है. ठीक है गाइस. अब इसमें क्या क्या है एग्जांपल देखिए. एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, देन ह्यूमन बींग्स, या इट मीन्स एवरी ह्यूमन बींग्स, आप में सब लोग, प्लांट्स, जंगल्स, फॉरेस्ट, एवरीवन, फूल, फ्लावर, एवरीवन, अ थिंग्स विच हैज़ अ लाइवनेस, ऐसे थिंग जो ब्रीथ कर सकता है, लिविंग थिंग जो पूरा आता है किसमें? बायोस्फीयर में, जीवावरण में. इट कंसिस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स, it consists plants also. Now you can see on the land there is too much various enormous plants, animals, small birds, butterfly. कितनी सुंदर होती है. ऐसे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे जीव जो रहते हैं ना, वो सारे इसी के पार्ट है. तो एज ए ह्यूमन बीइंग अपना वर्क है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बायोस्फीयर को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सिटीजन होने के नाते अच्छे सेव करें. हमें पेड़ तोड़ने नहीं, पेड़ लगाने. डोंट कट ट्री, प्लांट ट्री. माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग मी. I must sincerely hope you enjoy, you learn something new from science, from our mother earth. I hope you always love to our mother earth, nature and everyone. So guys, stay home, stay safe. Thank you.